Okay, student, here we can see we have already started with the chapter number 3, demand function, and in that demand function we have seen the meaning of demand and then the law of demand. After law of demand, in that law of demand we have seen the demand schedule, then again the statement of law of demand, what is the function of demand, and then the as per the schedule how to draw the demand curve, assumption of the demand, and then exception to the law of demand, determinants of demand. Okay, these all points we have already studied in your last lecture. Today how many participants are there total? Very few, only 13 are there. Okay, see, now we have to see the demand function. As I told you, this demand function concept is important from the case study point of view, but as we have seen the law of demand function, अगर किसी को याद आ रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो क्या था स्टूडेंट, को याद कर पाएगा? d इक्वल टू कैसे लिखा था फंक्शन हम लोगों ने? d इक्वल टू, yes, how was it? Demand function, quantity demand is equal to f into bracket p, am I right? Yes. Yes, student. You people have to be interactive. देखो, लॉ ऑफ डिमांड में जो अल्फ्रेड मार्शल था, उन्होंने डिमांड के लिए कौन से एक फैक्टर को कंसीडर किया था कि जो डिमांड को ये एक ही फैक्टर ज्यादा अफेक्ट करता है करके? व्हाट वाज दैट फैक्टर नेम? प्राइस। यस, इट वाज प्राइस. तो उन्होंने क्या, इसके लिए उन्होंने उनका जो लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शन था वो कैसे था? d is equal to f and then into bracket p. देखिए, because as per him the price was the one determinant of the demand. Okay, that will going to affect the demand. लेकिन when we have to say in the reality कि प्राइस अकेला ऐसा फैक्टर नहीं रहता है which affect the demand. Price के साथ में भी there are many other factors that actually affecting the demand for the commodity. So as we have already seen in our determinants of demand कि प्राइस तो रहता है, उसके साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं. तो ये जो आप लोगों को पेज पे दिख रहा है, जो डिमांड फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है, क्वांटिटी QX स्टैंड फॉर व्हाट? क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी. सो ये जो QX है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फंक्शन में उन्होंने ब्रैकेट में बहुत सारे लेटर्स को लिखा हुआ है. सो विच आर व्हाट आर दिस लेटर मीन हियर? दिस ऑल लेटर इट मींस दे आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. जैसे कि PX है, so PX stands for what? It is the price of commodity X. When we say the Y is the income consumer's income. ठीक है, कि मतलब कंज्यूमर का इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करता है. PS stand for price of substitute commodity. PZ stand for price of complementary commodity. T stand for taste and preferences. Then N stand for size and distribution of population. E stand for future expectation. A for expenditure on advertising and promotion. I for interest rate, and S for socio-cultural factor. So what exactly this point? This points we have already studied in your determinants of demand. तो अभी हम लोगों ने क्या दिया है कि ये जो डिमांड फंक्शन हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये डिमांड फंक्शन में whichever are the factor that affecting the demand, that all factors we have taken together. Is this clear to you, student? डिमांड फंक्शन में क्या क्या पॉइंट को लिया गया यहाँ पे? यस, समझ में आ रहा है या नहीं? है ना? यस मैम. यस. अभी देखो, ये जो डिमांड फंक्शन है ना, ये आप लोगों को जैसे आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, बिकॉज जनरली आप लोगों की डिमांड में क्या बैठा रहता है कि डिमांड फंक्शन मतलब d इक्वल टू f इंटू ब्रैकेट p. लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शन है, जहाँ पे आर्थर मार्शल बस यही बताता है कि प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन बताता है, बट इन रियलिटी ऐसे नहीं रहता है. रियलिटी में प्राइस के अलावा भी देयर आर मेनी अदर फैक्टर, और वो सबको हम लोगों को ऑल टुगेदर लेना है व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग द डिमांड फंक्शन. एंड देयरफॉर आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड दिस पर, अदरवाइज एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं है. जैसे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या रहता है करके, उसके लिए मैंने आपको ये समझाया. ओके, नाउ सी हियर यू कैन सी डिमांड फंक्शन फॉर प्राइस. So demand function for price, this already given by the Dr. Alfred Marshall, और ये हम लोगों ने already study किया हुआ है.
QS is equal to F, then into bracket PX. So QS is the quantity demanded for X commodity. F stand for your functional relationship, and P stand for price per unit of X, per unit of commodity X. मतलब X commodity का price क्या है करके. Okay. So इसी बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है केस स्टडीज में. तो जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि केस स्टडी में आपको लास्ट में समझाऊंगी, लेकिन एक जस्ट आपको दिखाने के लिए आई कैन शो यू हियर. Here you can see in table number 3.1. Okay, the way they have written this table, in this way only the case study will going to come. आप लोगों को वहां पे ऐसा इक्वेशन आएगा 100 minus 5p quantity x. यहाँ पे जैसे दिया है quantity x is equal to 100 minus 5p. तो ये आपको इक्वेशन आएगा और आपको ऑप्शन में आएंगे कि अगर प्राइस पर यूनिट, हियर यू कैन सी इन दिस कॉलम, if the price per unit is 4, if it is 8, 10 or 15, then what will happen with the quantity demanded. quantity demand कितना होगा ये आपको क्वेश्चन में आएगा. तो ये बहुत सिंपल है. जैसे कि देखो यहाँ पे 5p लिखा हुआ है, 100 माइनस 5p. तो आपको क्या करना है, प्राइस की जगह पे जस्ट आप लोगों को जो p लिखा हुआ है ना, उस जगह पे आपको प्राइस डालना है. जैसे कि p 5p है तो 5 into 4 लिखोगे आप लोग. So 5 into 4 20, 100 minus 20 80. सेकेंड है 8 दिया है, उन्होंने प्राइस पर यूनिट 8 दिया हुआ है. तो आप लोग 5p के जगह पे क्या लिखोगे, 5 into 8. So 8 5 40. So 100 minus 40 is equal to 60. इतना ही करने के लिए you will going to get the 1 mark. और उसके हिसाब से टोटली दिस केस स्टडी विल गोइंग टू कम फॉर 7 और 8 मार्क. लेकिन मैं अभी जस्ट आप लोगों को ये ओरली समझा के रखा हुआ है कि कैसे रहेगा करके. बट वंस वी विल गोइंग टू कंप्लीट आवर फुल चैप्टर्स and when we're going to start with the revision, at that time I will going to show you like how this will going to solve actually. किस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, 7-8 मार्क के लिए आता है, तो उसको कैसे डिवाइड किया जाता है क्वेश्चन को. एंड वन मोर सजेशन कि आपको ये ऑप्शन में आता है. ऑप्शन में आता है मतलब एक थियरी क्वेश्चन आता है, उसके साथ में ये ऑप्शन में आता है. ओके लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको भले वो थियरी क्वेश्चन आता है नहीं आता है, बट स्टिल यू पीपल ट्राई टू सॉल्व द केस स्टडी, बिकॉज केस स्टडी बहुत सिंपल है. एंड इन थियरी क्वेश्चन यू मे नॉट एबल टू गेट द फुल मार्क, बट इफ यू आर सॉल्विंग द केस स्टडी देयर यू कैन गेट द फुल मार्क्स ऑल्सो. ओके तो इसके लिए आप लोग केस स्टडी को ज्यादा फोकस करोगे. एंड सपोज इफ द एमसीक्यूज आर कमिंग, तो आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर केस स्टडी को ज्यादा इम्पैक्ट रहता है करके. हाँ लेकिन अगर थियरी पेपर है तो केस स्टडी का बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. ओके स्टूडेंट, सो ये हम लोग बाद में देखेंगे. इज दैट क्लियर? यस Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Yes. नाउ Yes, द नेक्स्ट ma'am. पॉइंट हियर ये है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. देखो अभी इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपको एग्जाम में. जैसे कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट प्राइस इफेक्ट और डिफाइन द कॉन्सेप्ट इनकम इफेक्ट और द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर ऐसे स्पेशली वो लोग पूछेंगे ना, सो इट विल गोइंग टू कम फॉर 2 मार्क्स ओनली. ओके लेकिन अगर आपको टोटली पूछा जाएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्राइस, इनकम एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो ये तीनों का तीनों अगर एक साथ पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको आता है 7 और 8 मार्क्स के लिए. ओके कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. बस आप लोग ये पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं सोचना कि मुझे मगअप करना है, आप ये हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के ले लो, देन ओनली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. अगर आप इसको बाहर करने जाओगे तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा. ओके सी हियर, what is price, income and the substitution effect? Today we have to see this question answer. See, why do consumers buy more when price falls and less when price rises? Here this question can be explained by further splitting up consumer behavior into income, price and substitution effect. Here देखो सबको पता है कि जनरली कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, when the prices of commodities are rising at that time consumer will going to demand the less of that commodity. ये कंज्यूमर का नॉर्मल बिहेवियर रहता है. लेकिन कंज्यूमर का ये जो बिहेवियर रहता है स्टूडेंट, इट विल बी डिफर अकॉर्डिंग टू द गुड्स, कि कौन से टाइप का गुड्स है. ये नॉर्मल गुड्स है क्या, ये लग्जरियस कमोडिटी है, या फिर ये कोई स्पेशियस कमोडिटी में आता है, या फिर ये कोई व्हाट वी कैन से जैसे कि इंफीरियर कमोडिटी में आता है.
तो वो टाइप ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है. ओके, सो दिस वे वी विल गोइंग टू सी द फर्स्ट वन हियर, इनकम इफेक्ट. देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, ध्यान में देखो, सो आपको सुनना है, ये ठीक से समझ के लेना है. इनकम इफेक्ट के बारे में है. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, it result in a change in the consumer's real income or purchasing power. When the price of commodity that the consumer wishes to purchase fall, the consumer immediately experiences a rise in her purchasing power and will buy more of the commodity, providing it is a normal commodity. While if the price rises, the consumer will experience decrease in the purchasing power and will purchase less of the commodity. This is known as income effect here. Income effect can be either positive or it can be negative depending on the nature of the commodity. देखो सुनो, यहाँ पे क्या होता है, इनकम इफेक्ट में हम लोगों को किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि जो हमारा रियल इनकम है और जो हमारा परचेसिंग पावर है वो कैसे कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. ओके, और यहाँ पे अगर मैं आपको रियल इनकम के बारे में एक एग्जांपल देना चाहूंगी. सो रियल इनकम मतलब क्या होता है? इनकम मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारा सैलरी है, दैट वी कैन नॉट से इट एज अ रियल इनकम. रियल इनकम मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो भी आपका सैलरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इसे बताया गया लाइक 20,000 विल बी योर सैलरी, लेकिन 20,000 आपके पूरे हाथ पे नहीं जाता आता है. 20,000 में से प्रोफेशनल टैक्स कट किया जाएगा, 20,000 में से पीएफ को कट किया जाएगा, 20,000 में से अगर कुछ इंश्योरेंस है, कंपनी का कुछ पॉलिसी रहेगा इससे रिलेटेड, उसके लिए पैसा अगर वो लोग डिडक्ट करते हैं, तो वो सब कट करके अगर आपके हाथ में यू आर गेटिंग ओनली 15,000, मतलब बोलने के लिए तो आपका सैलरी 20,000 है, लेकिन एक्चुअल आपके हाथ में आता है इन हैंड 15,000. सो दैट 15,000 विल बी योर रियल इनकम. ओके, सो आप लोग क्या करोगे, 15,000 के अकॉर्डिंग यू विल गोइंग टू प्लान कि आपको कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना है, कितना सेविंग करना है करके. Isn't it? Now what exactly the purchasing power? Real income का कॉन्सेप्ट समझा आपको? What is real income? ये समझा? Yes? Yeah. हाँ, अभी देखो Yes, परचेसिंग ma'am. पावर. परचेसिंग पावर कम ज्यादा होता है, ये कैसे होता है? परचेसिंग पावर कैसे कम ज्यादा होता है? परचेसिंग पावर विल गोइंग टू चेंज व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी चेंजेस. अभी इसके लिए मुझे अगर आपको एग्जांपल देना है, सो मैं आपको बताऊंगी कि चलो राइस के बारे में लेते हैं कि एवरी मंथ वी नीड टू परचेज द राइस और द वेट वी आर परचेसिंग. ओके, तो अगर राइस में परचेज करती हूँ हमेशा सपोज 30 रुपीज के का, और एवरी मंथ आई नीड टू परचेज 10 kg ऑफ राइस. अभी आप लोग मुझे बताओ 30 रुपीज के हिसाब से, 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से 10 kg का मैं एवरी मंथ राइस के ऊपर कितना पैसा खर्च करती हूँ? 300. हाँ, मैं 300 रुपीज खर्चा करती हूँ. ठीक है, अभी क्या हो गया कि नेक्स्ट मंथ में सपोज वो जो 30 रुपीज के वाला राइस था वो अभी 25 kg पे अवेलेबल हो गया है, उसका रेट कम हो चुका है, प्राइस कम हो चुका है. तो अभी मुझे बताओ कि मैं कितना पैसा खर्च करके 10 kg के लिए? 250. यस, हाउ मच? 250, मैम. 250. ओके, यस, मैं अभी मंथली खर्चा करती हूँ 250. पहले मैं 300 रुपया खर्चा करती थी, अभी मैं राइस के ऊपर 250 रुपीज खर्चा कर रही हूँ. सेम क्वालिटी ऑफ राइस आई एम यूजिंग अगेन. ओके, सो मेरे पास 50 रुपीज बच जाता है. सो वो 50 रुपीज से मैं क्या करूंगी, आइदर मैं वो राइस को ज्यादा खरीदूंगी या फिर मैं कोई और कमोडिटी जो मुझे चाहिए वो मैं खरीदूंगी. तो मतलब पहले मैं बस राइस 300 रुपए में बस मैं राइस ही खरीद सकती थी, लेकिन अभी 300 रुपए में मैं राइस के साथ और कुछ अदर कमोडिटी भी खरीद पा रही हूँ. तो यहाँ पे मेरा परचेसिंग पावर कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ, मैम. यस, मेरा परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ गया. ये परचेसिंग पावर मेरा क्यों बढ़ा? बिकॉज प्राइसेस कम हो गए थे, बिकॉज जो मेरा कमोडिटी था उसके प्राइसेस कम हुए करके मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया. सो व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग? अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो व्हाट वी से कि अपना इनकम जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है. ओके, मतलब somewhat our purchasing power is increases, our income is increases because of the reduction in the price of that commodity, and therefore it is called as your income effect. This one is clear to you student? ये समझा Yes, आपको ma'am. इनकम इफेक्ट क्या है करके? लेकिन Yes, आपको Yes, यही ma'am. ध्यान में रखना Yes, है कि व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द Yes, इनकम ma'am. इफेक्ट,
तो आप लोगों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है अपने मन से कि इनकम इफेक्ट में आप लोगों को सबसे पहले कंसिडर करना है कि रियल इनकम एंड परचेसिंग पावर के बारे में, ठीक है। रियल इनकम एंड परचेसिंग पावर कैसे कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइसेस। सो दिस वे यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन एंड तभी आपको वहां पे बताना है कि दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ इनकम इफेक्ट। नाउ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एवरीबॉडी नो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव कमोडिटी, अगर कोई एक कमोडिटी नहीं खरीदता है तो उसके अलावा मैं कोई और कमोडिटी खरीद के मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इट एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली इन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सी as the price of commodity changes, it becomes relatively cheaper or more expensive than the other commodity. If a commodity becomes relatively cheaper than other due to fall in its price, the consumer will then have a tendency to increase the consumption of the commodity whose price has fallen and to reduce the consumption of those commodities which are relatively more expensive. The opposite will be true in the case of commodity whose price rises. The switching from a relatively more expensive commodity to a relatively cheaper one is known as substitution effect. Substitution effect on demand due to change in price will always be opposite in direction to the price change. That is, if price of a commodity fall, the consumer will buy more of the commodity. Thus, the substitution effect is always positive. देखो substitution effect में क्या होता है स्टूडेंट की, यहाँ पे हम लोग अगर प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे सो जिसका जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी है, अगर उसमें से टी का प्राइस कम हो जाता है, पहले मैं कॉफी प्रेफर करती थी लेकिन अभी टी का प्राइस कम हो गया है, कॉफी का प्राइस भी चेंजेस नहीं हुआ लेकिन टी का प्राइस कम हुआ, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ अभी टी ज्यादा यूज कर रही हूँ। सो इसको कहा जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो प्राइस चेंज हुआ इसके मतलब वो कमोडिटी चीप हो गया, प्राइस कम होने की वजह से वो कमोडिटी चीपर हो गया और जब हम लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज योर पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या है ये समझा आपको? Yes, ma'am. Yes. हाँ Yes, ma'am. हाँ। नाउ द नेक्स्ट वन ईयर प्राइस इफेक्ट। अभी प्राइस इफेक्ट मतलब क्या होता है? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ योर इनकम एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा अलग है। जब हम लोग प्राइस की बात करते हैं, देखो यहाँ पे उन्होंने दोनों को क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज हमारा इनकम में जो रियल इनकम था और जो परचेसिंग पावर था वो भी प्राइस की वजह से ही वहां पे चेंजेस हो रहा था। प्राइस कम हुआ करके हमारा रियल इनकम और हमारा परचेसिंग पावर बढ़ा, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो हमारा रियल इनकम कम हो जाएगा, हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। सो समव्हाट प्राइस में भी इनकम आता है। ओके, देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, वो चीपर हो जाता है करके हम लोग उसको खरीदते हैं और उसका जो अल्टरनेटिव है जो जिसका ना प्राइस बढ़ा है ना कम हुआ है उसको हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के भी टाइम पे प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर आ गया कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों का वहां पे डिसीजन हुआ कि हम लोगों ने कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया करके। सो देयरफॉर व्हेन वी से अबाउट द प्राइस इफेक्ट, सो इन दैट वन we have to consider the income effect also as well as the substitution effect also. So when we say about the price effect, it is the combined effect of income and the substitution effect here. See, it again explains the inverse relationship between price of a commodity and its demand. The price effect is graphically represented by the demand curve. Price effect का अगर formula है, so that is income effect plus substitution effect. लेकिन प्राइस इफेक्ट कब होता है? ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो इनकम बढ़ गया, प्राइस कम हो गया तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वहां पे पॉजिटिव हुआ, ये सब किस कमोडिटी के ऊपर एप्लीकेबल रहता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। दैट कमोडिटी हैज टू बी नॉर्मल कमोडिटी। अगर वो नॉर्मल कमोडिटी नहीं है तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। अभी आप बोलोगे कि मैम नॉर्मल कमोडिटी मतलब क्या रहता है? नॉर्मल कमोडिटी मतलब क्या रहता है कि जिनका जो प्राइस रेंज रहता है वो मिडल टू हाई प्राइस पे रहता है और ये कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कमोडिटी कंज्यूमर को खरीदना ही पड़ता है। by what we can say, by any cost they need to purchase this commodity and this is considered as a superior by the consumer. मतलब ये कमोडिटी अगर नहीं रहेगा तो कंज्यूमर का नीड सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। सो दे आर कॉल्ड एज योर नॉर्मल कमोडिटी। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? बराबर है या नहीं? यस
Yes, ma'am. अगर इसी Yes, इसी इसी में मतलब प्राइस इफेक्ट के बारे में अगर हमें बात करनी है, तो उसके अंदर अगर मैं कार का प्राइस का बात करूंगी तो वो तो इतना कोई मैंडेटरी नहीं रहता है, वो एक लग्जरियस कमोडिटी में आ जाता है। तो वो अगर मेरा डिजायर रहेगा, मेरे पास पैसा रहेगा उतना, तो मैं खरीद लूंगी। ओके, उसका प्राइस कम हुआ है करके अभी मैं उसको ज्यादा खरीदूंगी ऐसा नहीं रहेगा। सो कार का भी वी कैन नॉट से लाइक दैट विल गोइंग टू कम इनटू योर नॉर्मल कमोडिटी। नॉर्मल कमोडिटी मेरे हिसाब से ज्यादा जो हमारा बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर आप लोग फूड बोलो, नाउअडेज इवन यू कैन से द इंटरनेट। इंटरनेट भी अभी नॉर्मल कमोडिटी में आ चुका है। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो अपना कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो पाता है। तो वो भी मैं कंसिडर करूंगी कि वो कोई अभी लग्जरियस कमोडिटी नहीं है। प्रीवियसली इट वाज यूज्ड टू बी कंसिडर्ड इनटू द लग्जरियस सर्विसेज, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नाउ इट हैज वी हैव टू काउंट इट इनटू द नॉर्मल कमोडिटी। यू ऑल एग्री विथ मी? ये बराबर ही है नहीं? हर एक को इंटरनेट की जरूरत होती है अभी। यस Yes, ma'am. यस। तो जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो उस कमोडिटी को कहा जाता है अपना नॉर्मल कमोडिटी। मेडिसिन विल नॉट गोइंग टू कम इनटू नॉर्मल कमोडिटी। अल्कोहल अगेन नॉट गोइंग टू कम इनटू द नॉर्मल, नहीं, लेकिन अल्कोहल क्या हो जाता है, हैबिचुअल में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका प्राइस बढ़ेगा तो कोई कम डिमांड करेगा ऐसा तो नहीं होता है। उसका प्राइस बढ़ेगा, स्टिल दे विल गोइंग टू हैव द डिमांड। सो अगेन वी कैन नॉट कंसिडर इट इनटू द नॉर्मल कमोडिटी। ओके, चलो हम लोग देखते हैं अभी कि प्राइस इफेक्ट में जो इनकम इफेक्ट है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो एक्चुअली, स्टूडेंट कैन यू जस्ट गिव मी फ्यू मिनट, एक मिनट जस्ट एक
Ma'am. Okay, sorry student. See here, what happened? You are for which class? 12th standard? 11th का भी नहीं है बेटा यहाँ पे। आज नहीं मतलब लाइक मॉर्निंग से नहीं है इतना। You have to wait for a few minutes. Okay, see student, नॉर्मल गुड्स के बारे में हम लोग बात करें अभी। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स मतलब मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल गुड्स मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज रहता है और हमें वो बहुत नेसेसिटी रहती है वो कमोडिटी के, ठीक है। सो दिस अभी यहाँ पे मैं आपको बता दें कि नॉर्मल गुड्स में हमें देखना है कि प्राइस इफेक्ट कैसा रहेगा, इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि जैसे मैंने आप लोगों को नॉर्मल गुड्स क्या है ये बता दिया, अभी आप लोग मुझे बताओ अगर इसके अंदर प्राइस कम हो जाता है, नॉर्मल कमोडिटी का अगर प्राइस कम हो जाता है तो आपका इनकम बढ़ेगा या कम होगा, मतलब आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा या कम होगा। नॉर्मल कमोडिटी नॉर्मल कमोडिटी की बात करें, क्या लगता है मैम आप लोगों को? परचेसिंग पावर बढ़ेगा मैम। हाँ, इनकम बढ़ेगा। सो इनकम बढ़ेगा मतलब ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो गया। अगर नॉर्मल कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, मतलब नॉर्मल कमोडिटी की अगर प्राइस कम हो जाती है और इसके साथ में और भी एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, ठीक है, जिसका प्राइस ना कम ज्यादा हुआ, तो आप लोग अगर वो कमोडिटी नॉर्मल है तो उसके लिए जिसका प्राइस कम हुआ आप लोग को खरीदोगे, या जो आप लोग हमेशा से जो कमोडिटी यूज करते थे जिसका प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ वही आप लोग खरीदोगे? व्हाट यू विल गोइंग टू डू? मैम जिसका दोनों प्राइस जिसका कम हुआ प्राइस वो कम है उसे खरीदोगे खरीदेंगे। या जो पहले से यूज कर रहे थे मैम वही दोनों आप लोग कंटिन्यू करोगे? मैम दोनों यूज कर सकते हैं ना। मैम क्या? प्राइस कम वाला को खरीदेंगे मैम। हाँ, जिसका जिसकी प्राइस कम प्राइस हुआ, कम होगी। यस वेरी गुड, जिसका प्राइस कम हुआ हम लोग वो खरीदेंगे। मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी क्या हुआ, वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी दिख रहा है, मतलब वहां पे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रहेगा। तो आप लोगों को क्या बताना है, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, dash type of a commodity has positive income and the substitution effect, मतलब दोनों भी इफेक्ट वहां पे पॉजिटिव रहेगा। सो दैट विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर द नॉर्मल कमोडिटी, ये आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। इफ इट इज अ नॉर्मल गुड्स तो वहां पे इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव रहेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट सिचुएशन बताती हूँ, दिस इज अबाउट द इंफीरियर कमोडिटी, ठीक है। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। इंफीरियर कमोडिटी मतलब यहाँ पे ये चीज होती है कि दे आर द लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं रहता है कमोडिटी का, दिस इज द इंफीरियर कमोडिटी। अभी आप लोग मुझे बताओ अगर इंफीरियर कमोडिटी का प्राइस कम होता है, लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी का प्राइस कम होता है, तो आप लोग क्या करोगे, लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी खरीदोगे या फिर जो आप लोग कमोडिटी यूज कर रहे हो आप लोग वही खरीदोगे? हम जो यूज कर रहे हैं उसे खरीदेंगे। बोलो। आप देखो मैंने आपको बताया कि आप लोगों का एक आदत है कि एक अच्छा क्वालिटी का कमोडिटी मतलब नॉर्मल कमोडिटी आप लोग हमेशा यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको खबर आया कि जो पहले बहुत सस्ते में अवेलेबल था वो कमोडिटी अभी और भी, मतलब जो लो क्वालिटी कमोडिटी था जो सस्ते में अवेलेबल था वो अभी और भी सस्ता हो चुका है। तो आप लोग अपना क्वालिटी कम करोगे वहां पे, या जो आप लोग कंटिन्यू पहले से खा रहे हो वही आप लोग यूज करोगे? क्या पहले करोगे वाला इस मैम सिचुएशन? कंटिन्यू करेंगे। कम करेंगे मैम। क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे? इज इट? पहले पहले वाला कंटिन्यू करेंगे मैम। आप लोग क्या करोगे, मेंटेन करोगे, बिकॉज आपको वो अफोर्डेबल है, ओके, इट इज अफोर्डेबल फॉर यू। आप लोग को लो क्वालिटी पहले भी आपके पास अवेलेबल था लेकिन आपको नहीं खरीदने था करके आपने उसको नहीं खरीदा, उसका प्राइस भले और भी कम हो जाएगा फिर भी आप नहीं खरीदोगे, बिकॉज आप लोगों का एक जो आप लोग खरीद रहे हो पहले से उतना आपके लिए अफोर्डेबल है एंड यू आर प्रिफरिंग दैट कमोडिटी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, इनकम इफेक्ट क्या हो गया, इनकम इफेक्ट नेगेटिव कहोगे या पॉजिटिव कहोगे? व्हाट यू विल गोइंग टू से फॉर द इंफीरियर कमोडिटी? इंफीरियर कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो आपने क्या किया, उसको आपने नहीं खरीदा, आप लोग जो पहले से खरीद रहे थे आप लोगों ने उसको ही खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, इनकम आपका इनकम कम मतलब ज्यादा बढ़ेगा वो खरीदने से, ये आप लोगों ने नहीं सोचा, आप लोगों ने स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहा। एम आई राइट और नॉट? यस, ऐसा ही करोगे आप लोग जनरली एज अ कंज्यूमर? यस और यस नो? मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, वन इज विद द लो क्वालिटी एंड अदर वन इज विद द गुड क्वालिटी, ठीक है। इंफीरियर कमोडिटी की बात करूँ, इसके लिए मैं आपको उस फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ, लो क्वालिटी एंड द गुड क्वालिटी। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, मतलब अगर आप लोग ये हाई क्वालिटी का कमोडिटी यूज नहीं करोगे, उसकी जगह पे लो क्वालिटी का कमोडिटी भी यूज करोगे तो भी चलेगा, उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है इफ दे आर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि अगर वहां पे लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम होता है, आप लोग क्या करोगे इंफीरियर कमोडिटी के लिए? आप लोग उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे या नहीं करोगे? व्हाट यू विल गोइंग टू डू? मैंने कहा आप अगर लो क्वालिटी भी खरीदोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप अगर वो हाई क्वालिटी भी खरीदोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग चाइनीज, आई थिंक गर्ल्स विल एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, तो मैं गर्ल्स के लिए एग्जांपल देती हूँ। अगर बॉयज लोग कोई खाना पकाते रहेंगे तो आप लोग भी मुझे आप लोग भी उसको रिलेट कर पाओगे। ओके, देखो चाइनीज सॉस रहते हैं बनाने के लिए, सो चाइनीज सॉस में भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सॉस रहते हैं। जैसे कि आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सोया सॉस, ठीक है। तो सोया सॉस जो रहेगा, एक रहता है कि चिंग का एक सोया सॉस रहता है और एक कोई और सिंपल कंपनी का सोया सॉस रहेगा। अभी आप लोग मुझे बताओ, चिंग का सोया सॉस महंगा है और एक सिंपल कंपनी है वो भी डार्क सोया सॉस ही सेल कर रहा है, लेकिन उनका प्राइस कम है, आप लोग क्या प्रेफर करोगे? गर्ल्स, आई वांट द आंसर फ्रॉम द गर्ल्स, व्हाट यू विल गोइंग टू प्रेफर? आप चिंग का सोया सॉस प्रेफर करोगे जिसका प्राइस ज्यादा है, या नॉर्मल कंपनी जिसका सोया सॉस का प्राइस कम है? बोलो। नॉर्मल वाला मैम। यस, नॉर्मल वाला खरीदो, बिकॉज Normal सोया वाला। सॉस है वो भले वो चिंग कंपनी का रहने दो, किसी और का रहने दो, लेकिन वो सोया सॉस डालने के बाद में वो चाइनीज जो भी फूड बनेगा उसका टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कुछ ज्यादा वहां पे डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट द इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड में क्या हुआ कि उसका प्राइस भले ही कम रहेगा, फिर भी आप लोगों ने उसको प्रिफर किया, सब्स्टिट्यूट किया वहां पे। तो अभी आप लोग मुझे क्या कहोगे स्टूडेंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव कहोगे या नेगेटिव है? फिर भी व्हाट यू ऑल से, आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वहां पे हुआ या नहीं हुआ? हुआ पॉजिटिव हुआ ना सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पॉजिटिव यस, इट विल बी द Positive. पॉजिटिव वन, वेरी गुड। तो इंफीरियर गुड के लिए इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव बट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है गिफेन गुड। अगेन दे आर द काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ओनली। ये जो इंफीरियर गुड्स है इसको ही गिफेन गुड कहा जाता है। बस डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे, ये जो गिफेन गुड का कॉन्सेप्ट है ना, ये सर रॉबर्ट गिफेन ने इंट्रोड्यूस किया था करके वहां पे नाम आया है गिफेन गुड्स करके, ये आप लोग ध्यान में रखो, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं रहता है। लेकिन जो सर रॉबर्ट गिफेन थे, उन्होंने जिस कमोडिटी को इंफीरियर करके कंसिडर किया था, वो क्या कमोडिटी था? वो कमोडिटी ऐसा था कि वो सबसे ज्यादा लोएस्ट था। देखो मैंने आपको कहा कि इंफीरियर गुड्स मतलब भी लोएस्ट ही है करके, ठीक है, इंफीरियर गुड्स भी लोएस्ट ही है। लेकिन गिफेन गुड्स के लिए सर रॉबर्ट गिफेन ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो वो उन्होंने बेसिकली बहुत गरीब लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया था, कि जो गरीब लोग रहते हैं वो हमेशा लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी खरीदते हैं। ओके, उनके लिए वही अफोर्डेबल है करके वो हमेशा लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भले वो लोग लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी खरीदते हैं, अगर उसका प्राइस उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है, अगर इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको ही खरीदते हैं, बिकॉज उससे ज्यादा लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी नहीं रहता है। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? ये समझ में आ रहा है आपको? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अभी और एक मैं आपको कह देती हूँ, इंफीरियर गुड्स ऐसा है कि अगर जिसका प्राइस Ma'am, कम हो जाता attendance. है तो गरीब लोग क्या करेंगे, वो कमोडिटी नहीं ज्यादा खरीदेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला कमोडिटी वो खरीदना प्रेफर करेंगे। बराबर है या नहीं? एकदम ज्यादा पत्थर वाला राइस वगैरह खाने से, पत्थर वाला राइस इन द सेंस कि एकदम एकदम कनी जैसे टुकड़ा जैसा राइस है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह है, तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसको अवॉइड करेंगे और थोड़ा उससे बेटर वाला खरीदेंगे अगर उसका प्राइस अगर कम हो जाता है।
तो दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ गिवन गुड। अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि गिवन गुड में इनकम का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, क्या लगता है आप लोगों को? अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे या उससे थोड़ा अच्छा क्वांटिटी ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला खरीदेंगे? व्हाट डू यू ऑल से? ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा खरीदेंगे? यस मैम, वो थोड़ा अच्छा गुड क्वांटिटी खरीदेंगे, गुड क्वालिटी। नहीं, सी फॉर द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कमोडिटी फॉर द पुअर पीपल, अगर उनके लिए वो अफोर्डेबल है, मतलब उनका अगर प्राइस कम हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा नहीं खरीदते, वो लोग थोड़ा अच्छा क्वालिटी के पीछे लगते हैं। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ, मतलब देखो लोएस्ट क्वालिटी मतलब इट विल बी वेरी मच पुअर वन, ठीक है, इट विल बी द वेरी पुअरेस्ट वन। स्टूडेंट यहाँ पे लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। somebody please take the attendance, who will send me the attendance now? कल मुझे किसने भेजा था अटेंडेंस ए डिवीजन में से? यस यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ हाँ, आंसर ओके जोया, तो आपने लेके रखा है ना, ठीक है, क्योंकि कभी भी लेक्चर खत्म हो सकता है। तो गिवन गुड्स के लिए यहाँ पे इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी द पॉजिटिव वन। तो इससे क्या पता लगता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ कमोडिटी, इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव ओनली फॉर द नॉर्मल गुड, और बाकी सारे कमोडिटी के लिए इनकम इफेक्ट विल बी द नेगेटिव वन ओनली। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, this is all for the today and then the remaining points only एक ही पॉइंट अभी अपना बाकी है, एक क्वेश्चन आंसर, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगी। नेचर ऑफ